Assalamu alaikum. So in last lecture we cover exact equation. Today our topic is first order linear equations. I will take your attendance at the end of the this lecture. So kindly send your name and roll number uh, on Google Meet chat. So let's start the lecture about first order linear equation. First we will cover we already covered the exact equation, homogeneous equation, and separable equation. So the number 4 is first order linear equations. Any equation which can be expressed in the form y dash plus p of x y is equal to q of x. Here p of x and q of x both are functions of x and y is the derivative. You can write also this equation as in form dy by dx plus p of x y is equal to q of x. So if any equation uh, given equation can be written in this form, you can say the equation is first order linear equation. So where p and q are function of x, how to solve the first order linear equation? Simple. It is very simple. To solve a first order linear equation, first rewrite it if necessary. Mean if the order or the equation is not arranged or in this form, then we will change the equation, rewrite the equation the in this form. Okay, for example, you are given a equation uh, x dy by dx plus x by x square to x by 2x x square into y is equal to uh, 1 over x. Okay, if you are given if you are given the equation in this form, then you first rewrite the equation into this form. This should be uh, separate from any function. ये यहाँ पे अकेला होना चाहिए. x को आपने फिर यहाँ पे डिवाइड करना है तीनों साइड पे, दोनों साइड पे, तब आपके पास जाके ये इक्वेशन आएगी. ठीक है. अगर इक्वेशन आपके पास dy बाई डी एक्स के साथ कोई चीज टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने dy बाई डी एक्स को अलग कर लेना है फंक्शन से. ठीक है. और उस फंक्शन को आपने फिर क्या करना है, अलग करने के लिए हम क्या करने करेंगे, इसको x बाई एक्स डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे और इधर भी x. तो हमारे पास नई जो इक्वेशन आएगी, ये x खत्म हो जाएगा, ये x यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगी. ठीक है. तो ये इक्वेशन अब हम कह सकते हैं कि ये मेरी लीनियर इक्वेशन है. आपके पास ये जो y है, यहाँ भी y होना चाहिए. ठीक है. अगर यहाँ पे मे बी ये आपको चेंज हो सकता है. मैं अगर इन टर्म ऑफ डी थीटा बाय डी टी करूँ इसको, ठीक है, तो आपके पास p ऑफ t थीटा इज इक्वल टू q ऑफ t होना चाहिए. ठीक है. वेरिएबल कैन बी चेंज, वेरिएबल कैन बी चेंज.
तो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, बट आपकी जो इसकी इक्वेशन की फॉर्म है वो यही रहनी चाहिए। ठीक है, जो ये यहाँ पे वेरिएबल आएगा वो यहाँ आना चाहिए, जो यहाँ पे वेरिएबल आएगा वो यहाँ पर आना चाहिए। टू सॉल्व अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। जी सर। To solve a first order linear equation, first rewrite it if necessary in the standard form. This is the standard form. If it is not given in the standard form, first step is to rewrite the equation in the standard form. Then multiply both sides by the integrating factor. For solution of the first order linear equation, first of all, we rewrite equation into the standard form. Then we multiply the both side of the equation with the integrating factor. So integrating factor, what is the integrating factor? Basically, integrating factor is equal to e to raise power integral of p of x dx. सो आपने इसका एक्सपोनेंशियल लेना है, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो आपके पास ये होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स ओवर टू प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आपने यहाँ पे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर में उसको पुट करना है पी ऑफ एक्स को, क्योंकि ये पी ऑफ एक्स वाई के साथ आ रहा है, इट मीन ये पूरी जो फंक्शन है ये क्या है, पी ऑफ एक्स है। और y इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, ये वन ओवर एक्स स्क्वेयर ये क्यू ऑफ एक्स है, एक्स ओवर टू प्लस एक्स स्क्वेयर ये क्या है, पी ऑफ एक्स। सो वी देन इंटीग्रेट द integrating, we will take the integrating factor, which is you can write it, you can write integrating factor as mu of x, or you can write it also if. Okay, integrating factor. So integrating factor formula is basically exponential integrating of p of dx. So the resulting equation, when we take the integrating factor, then we multiply this integrating factor into the equation 1. पहला काम क्या होगा हमारा, इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने रीअरेंज करना है, फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है पी ऑफ एक्स का, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको मैं इस इक्वेशन से अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसकी ईच टर्म को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप देखिए आपके पास क्या है, ये आया ना, इसका कुछ आंसर आएगा जब आप इसका एक्सपोनेंशियल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डीएक्स करेंगे। तो लेट से के यू म्यू ऑफ एक्स आपके पास आया है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3, लेट से कि आपके पास इसका आंसर है। अब इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है आपने हर एक टर्म के साथ, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, इससे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज देन इजी टू सॉल्व, नॉट बिकॉज इट्स एग्जैक्ट बट बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड कोलैप्स। अच्छा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो टोटल डिफरेंशियल के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखें क्या हो रहा है, टोटल डिफरेंशियल किस तरह, जब आप इसको सॉल्व करेंगे या इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये ऐसे होगा जैसे आपने दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट रूल दिया, ठीक है, एक्स एंड वाई का। तो आपके पास देखें यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास टोटल डिफरेंशियल। तो टोटल डिफरेंशियल को फिर आपने, ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगा होगा यहाँ पे डिफरेंशियल का, हम एग्जांपल करेंगे उसमें आपको मोर क्लियर हो जाएगा। सो फिर आपने हमने उस, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको dy बाई डी एक्स करूँ और इसको ओपन करूं तो आप देखें क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y, फर्स्ट का डेरिवेटिव वन आ जाएगा और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज y और आपके पास x का वन आ जाएगा। अब देखें अगर मेरे पास इस तरह एक टर्म लिखी हो dy बाई डी एक्स प्लस वाई, तो इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ ना डी बाई डी एक्स एक्स वाई। ठीक है, इस गिवन टर्म को, ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है डिफरेंशियल का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज वन। so we can write this equation into again product rule। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट रूल। सो अब यहाँ पे देखें, सिंपल हमने, अब नेक्स्ट टाइम फिर हम इसका क्या करेंगे, सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब आपने इसका प्रोडक्ट रूल लेना है, फिर आपने इसका बोथ साइड पर इंटीग्रेशन लेनी है इसकी। अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इसी को लिखूं तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू म्यू वाई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू क्यू। तो जब ये चीज आपके पास आएगी, बोथ साइड आप इंटीग्रेशन लेंगे, ये डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो वहां से हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखें इसमें आपके पास ये चीज आई, म्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस म्यू पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई अगर डी एक्स अगर करें तो यहाँ पे देखें म्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब जब इसका आपने वो डेरिवेटिव लिया तो इसका क्या आएगा, वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ म्यू, ये अगेन म्यू के बराबर है। ठीक है, ई टू रेज बार इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स, ये म्यू यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो हमने म्यू लिख लिया। अब यहां से देखें, अब ये प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स म्यू वाई। तो अब इसका अगेन मैं डेरिवेटिव लूं तो आपके पास यही टर्म आएगी। ठीक है, देयरफॉर आपके पास ये इक्वेशन आएगी लास्ट। इसका दोनों तरफ हम इंटीग्रल लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल के साथ, इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा। ठीक है, dx के साथ। Do not memorize this equation for this question, memorize this step needed to get there। Let's take some example, then this idea will more clear for you। Example 1, solve the differential equation which is given y dash plus 2xy is equal to x। First our step is when is this equation in the standard form? Yes, because dy by dx plus p of x which is 2x into y and qx which is x is equal to, this is qx and 2x is basically p of x and this is y multiply by y। तो ये मेरी इक्वेशन आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y डैश भी है मेरे पास, p ऑफ x इंटू वाई भी है और q ऑफ x भी है।
सो फर्स्ट आपने क्या करना है, हेयर हेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और म्यू इज इक्वल टू ई टू रेज पावर इंटीग्रल पी ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखें पी हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x के, की ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x के। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें ओनली क्या चाहिए, पी ऑफ एक्स। तो P ऑफ x जब हमारे पास आ गया तो उसको अब हम क्या करेंगे, सिंपल उसको एक्सपोनेंशियल की पावर में पुट करेंगे और वहां उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वहां से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ई टू रेज पावर पी डी एक्स, ई टू रेज पावर इंटीग्रल 2x dx, अब 2 आपका कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो आपके पास ई टू रेज पावर एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। ओके, नो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 1। जो आपके पास इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, ये इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। आपका जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो आपका क्या है, इक्वेशन 1। सो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई टू रेज पर एक्स स्क्वेयर विद दिस। सो इसके साथ आप करेंगे तो क्या आएगा, ई टू रेज पर एक्स स्क्वेयर वाई डैश प्लस ई टू रेज पावर एक्स स्क्वेयर 2xy इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स। ठीक हो गया, तो आपके पास जो ये टर्म आ जाएगी सेम जो मैंने अभी ऊपर लिखी है। नेक्स्ट देखें कि मैंने आपसे कहा है जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो साइड है, ये साइड, ये टोटल डिफरेंशियल के इक्वल हो जाएगा। यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं ई टू रेज पावर एक्स स्क्वेयर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर का आपके पास 2x आ जाएगा, तो देखें 2x ई टू रेज पावर एक्स स्क्वेयर। तो हम इसको जी सर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से थोड़ा रिपीट कर दें प्लीज। देखें, ट्रांसफॉर्म द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू, यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया है तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बेसिकली आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको आप म्यू कह रहे हैं यहाँ पर, वो हमारा आंसर आया ये। ठीक है, जब ये आंसर आया, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन, या आप ये करें या यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 आपकी स्टैंडर्ड जो आपको गिवन है क्वेश्चन, वो आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, इसके साथ ई टू रेज पर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी, और इक्वल्स के राइट हैंड साइड पे भी। सो जो आपके पास नई इक्वेशन आएगी वो आपके पास ये आएगी, e टू रेज पर एक्स स्क्वेयर वाई डैश प्लस 2x e टू रेज पर एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, ये देखें 2x e टू रेज पर एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू e टू रेज पर 2x इंटू एक्स। सो अब ये मैंने आपसे कहा था जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, तो ये जो है टोटल डिफरेंशियल, मीन ये दो फंक्शंस के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। ठीक है,
तो अब ये देखें, ये एक फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव दिया हुआ है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल डी बाई डी एक्स फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूं तो यही फाइल बनेगी ना, यही चीज बनेगी। ठीक है, तो इस चीज को मैं प्रोडक्ट रूल पे लिख लेता हूँ, उसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो इक्वल इक्वल टू, ये एज इट इज आएगी टर्म। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा है रीअरेंज द इक्वेशन, सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट के साथ, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स है हमारे पास फंक्शन, तो विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स करेंगे। तो इसको भी इंटीग्रेट किया, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ई टू रेज पर एक्स स्क्वायर वाई, हमारे पास ई टू रेज पर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू रेज पर एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू रेज पर एक्स स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, dx। और नेक्स्ट आप इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास 1/2 ई टू रेज पर एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड y इज इक्वल टू आपके पास 1/2 प्लस सी ई टू रेज पर माइनस एक्स स्क्वायर। वो कैसे, आप क्या है, आपने इस सिंपल यहाँ से y को अलग करना। तो ये मेरे पास गिवन लीनियर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, सर इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई है। हाँ ये आप खुद देख लें क्या इसमें लगा हुआ है, आपने ओके सर। बेसिकली इसका डेरिवेटिव बनाया यहाँ पर। ठीक है, 2x होता है ना इसका डेरिवेटिव, ई टू रेज पर एक्स स्क्वायर, और अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 1/2 बाहर आ गया 2x, और इसका इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगा। ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको अगर गिवन हो y ऑफ पाई इज इक्वल टू 1 and given equation is y dash plus 1 over x into y is equal to sin x। अब फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकती थी, x y डैश प्लस y is equal to sin x। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी गिवन हो सकती थी। अब आपने इसको फर्स्ट स्टेप क्या करना था, रीअरेंज करना था, यानी सब साइड पे आपने x के साथ डिवाइड करना था। तो इसके साथ मैं x को डिवाइड करता, इसके साथ मैं x को डिवाइड करता, और इसके साथ मैं x को डिवाइड करता, तो ये x x कैंसिल हो जाता, ये 1 ओवर एक्स वाई आ जाता, और ये x x कैंसिल होके साइन ऑफ x आ जाता। तो इस फॉर्म में अगर आपको गिवन हो, यानी कि अगर डेरिवेटिव के साथ भी कोई फंक्शन गिवन हो, तो आपने उसे खत्म करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू साइन x, और साथ क्या दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विच इज y ऑफ पाई मीन व्हेन x इज इक्वल टू पाई, y आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, देन हमने डिसाइड किया विच इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin of x. So this is our p of x and this is our q of x. Now second step is to find the integrating factor, which is mu of x is equal to e to raise power integration p dx and is equal to p 1/x. Integration of 1/x is natural log of x. So e to raise power natural log of x, this natural log will cancel out this exponential because they both are opposite to each other. So e to raise exponential will cancel out the natural log, so we will remain x. So it mean integrating factor is equal to only x. So mu of x is equal to x. Now next step is to multiply this integrating factor with equation number 1. When we multiply this integrating factor with equation 1, we will gain this equation which is xy dash plus x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा तो साइन x x इंटू साइन एक्स आ जाएगा. So y is equal to x sin x. Now this is the total differential equation which can be written as dy by d over dx into x y. ठीक है, is equal to x sin x. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन बोथ साइड. When we integrate this equation, we cancel this derivative with integration. So on left hand side we will have xy is equal to integration of x sin x dx. So integration by parts यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपके पास xy is equal to minus x cos x plus sin x plus आपके पास c आ जाएगा. अब यहाँ पे बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? initial value problem. So we put x as a pi. यहाँ पे हम पाई x को पुट करेंगे और y को हम 1 पुट करेंगे. तो पाई इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस पाई कॉस ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ पाई प्लस c. सो c हमारे पास क्या आएगा? 0. तो जब हम 0 इसमें पुट करेंगे तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा ये आंसर होगा. दिस इज अवर जनरल और डिजायर्ड सॉल्यूशन. आप यहाँ से y को अलग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो y को आप अलग करेंगे, साइन x डिवाइड हो जाएगा यहाँ से आगे, x x से कैंसिल हो जाएगा और ये साइन x ओवर x आ जाएगा. तो आपके पास साइन x ओवर x माइनस कॉस x आ जाएगा. ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल टू -2y. अब यहाँ पर देखें ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, इक्वेशन लीनियर है या नहीं. सो हमारी इक्वेशन क्या है? y डैश प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में इसको लेके आना है. अगर मैं इस फॉर्म में लेके आऊं तो ये देखें एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो अब इस टर्म को मैंने यहां से हटाना है. तो इस टर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ. ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल आ जाएगा. तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये टर्म अगेन 0 आएगी.
सो अब हम कह सकते हैं कि ये मेरी इक्वेशन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है. नो हियर p of x is equal to 2 by x square. तो p of x मेरे पास 2 by x square आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? टेक द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू रेज पावर p dx e टू रेज पावर 2 by x स्क्वेयर. और यहाँ से इंटीग्रेशन अगर मैं x स्क्वेयर 1 ओवर x स्क्वेयर को इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ये चीज बचेगी. ठीक है. अगर हम x 2x स्क्वेयर था ना, 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ तो x माइनस स्क्वेयर कर लेता हूँ. ठीक है. तो अगर इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो बेसिकली अगर मैं x स्क्वेयर की इंटीग्रेशन करूँ वो कैसे होती है? x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. तो अब x माइनस स्क्वेयर की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे सो 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 विच इज माइनस 1 and minus 2 plus 1 which is minus 1. So ये अगेन आपके पास x की पावर माइनस 1 है तो 2 इंटू माइनस इसको कर सकते हैं माइनस 2 इंटू एक्स आप कर सकते हैं 1 ओवर एक्स. ठीक है. तो ये बेसिकली वही चीज है e टू रेज माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स. सो जब ये आपके पास क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन 1. ठीक है. सो इक्वेशन 1 इज this one is our equation number 1. So when we multiply our integrating factor with equation 1, this will become the total differential, which is e to raise power minus 2 over x dy by dx 2 over x square e to raise power minus 2 over x y. So you can say this the first function as it is derivative of second function as it is derivative of the फर्स्ट फंक्शन. तो डेरिवेटिव अगर मैं इसका लूं तो एक तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस 2 ओवर एक्स. और अब अगेन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास देखें 2 ओवर एक्स है ना, तो माइनस 2 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 1. ये आ जाएगा माइनस 1. ये पहले शुरू में आ जाएगा माइनस 1 एक्स माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा. ठीक है. तो ये माइनस इस माइनस 2 के साथ प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये प्लस आ गया. ठीक है. पहले यहाँ पे माइनस था ना जब हमने ये निकाला हुआ है. ठीक है. तो अब जब आपने इसके साथ किया प्लस आ गया और प्लस 2 बाई एक्स और साथ आपके पास ये टर्म आ गया. ठीक है. तो वही चीज है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो यू कैन राइट this term, this total differential or product rule in the simple form which is dy by dx first function which is e to raise power minus 2x and second function which is y, and on the right hand side we have zero values. So integrate both side. Next step is integration of both side. This derivative will cancel out this integrator sign and integration of cipher will become constant. So this term will become as it is e to raise power minus 2 over xy is equal to c, and you can write y is equal to c divided by e to raise power minus 2 divided by x, or this is minus, you can write y is equal to c e to raise power 2 divided by x. ये ऊपर जाके आपकी प्लस हो जाएगी. तो आपके पास ये इसका जनरल सॉल्यूशन आया है विच इज दिस. ठीक है. Yes, sir.
समझ आ रही है सर ना? जी बच्चे। सर अगर हमारे पास कोई पी टर्म ना हो इक्वेशन में तो क्या वो लीनियर होती है? पी टर्म जीरो हो जाएगी ना, तो इट मीन कि आपके पास ये वाई की टर्म नहीं आएगी। सर फिर वो लीनियर नहीं होगी ना? नहीं होगी। अगर ये वाई इसके साथ नहीं है इट मीन के लीनियर नहीं है, यानी ये सिफर अगर आप कर रहे हैं ये वाई सिफर हो जाएगा। अब आपको नहीं पता वो क्यू है या पी है, तो ये वाई होना मस्ट है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, जी तकवीम को ऐड कर दें सर, वो रिक्वेस्ट भेजी उससे। कोई नहीं आई। अब वो कह रहा है सर मैंने भेजी है रिक्वेस्ट, चलो मैं उससे पूछता हूँ सर। आ गई आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 5 is sketch the integral curve of this. So this is the given equation or given question. Find the integral curve of this given equation which passes through the origin. Origin mean y of 0 is equal to 0. यानी x भी 0 गिवन है और y भी 0 गिवन है. So which passes through the origin mean y of 0 is equal to 0. तो यहाँ पे क्या है आपके पास y is equal to 0 when x is equal to 0. So again first step is to rearrange this equation into the standard form. So divide 1 plus x square and 1 plus x square, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास y डैश प्लस अच्छा यहाँ पे एक और काम हुआ है, x को आपने अदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मुझे y की टर्म फिर मिलेगी, p ऑफ x की वैल्यू तब मिलेगी अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें x माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। अब माइनस एक्स वाई को मैं इस तरफ ले तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा और इस साइड पे सिर्फ एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको 1 ओवर एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया, ये अपने साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड किया तो ये एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया तो ये एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब दिस इज द p ऑफ x एंड दिस इज q ऑफ x। सो टेक द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो पहले हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन अगर मैं इसकी कर लूं तो यहाँ पे देखें आप, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मैं बना लूं किसी तरह तो मैं नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन कर सकता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या है मेरे पास 2x, तो मैं यहाँ पे 2x कर देता हूँ और 1/2 2 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो 1/2 भी कर दूँ ताकि अगर दोबारा इसी फॉर्म में लिखें तो ये कैंसिल हो जाए, 2/2 मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब इसका देखें डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जब इसका डेरिवेटिव है तो इट मीन आप इसको नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास e टू रेज पावर दिस, e टू रेज पावर इंटीग्रल p dx होता है ना, तो हमने पहले इंटीग्रल सॉल्व कर लिए, अब हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो टर्म है इस टर्म को मैं इसकी पावर में लेके जा सकता हूँ अगर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। नेचुरल लॉग है ना, तो नेचुरल लॉग से पहले अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको मैं उसकी पावर में लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग को, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखें इसके बाद ये स्टेप है कि मैं 1/2 को इसकी पावर में ले गया, नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास जो टर्म बची वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2 या
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास बची। तो सिंपल इसको हम कैसे लिख रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट को। सो अब ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हशाम हसन? सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके मल्टीप्लाई साथ? बाय इक्वेशन 1 सर। इक्वेशन 1। सो इक्वेशन सर 1 रियल इज, इक्वेशन के साथ। ये हमारी इक्वेशन 1 है, क्योंकि इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं, या ये वाली इक्वेशन नहीं, आपको ये गिवन इक्वेशन है ना, बट आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके उसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इक्वेशन 1 है, अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें और उसे इक्वेशन 1। अब इसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2 इंटू वाई डैश प्लस 1/, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x 2 क्यों आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो 1 यानी कि ये आपके पास इस तरह अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ऊपर भी आपके पास क्या था, यहाँ पे एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था। ठीक है, तो ऊपर अंडर रूट था, नीचे सिंपल था, तो सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, और आपके पास नीचे अब अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह साइड पे इस पॉइंट पे एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, उसके साथ जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा अब क्या है इसमें, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये हमारा टोटल डिफरेंशियल बन जाता है भाई। अब ये यस क्या सर। बनेगा, सर टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल कैसे बनेगा, ये समझ आई कि ये कैसे आया, इसको जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। देखें जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये देखें, उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। इस टर्म के साथ जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कुछ इस तरह आएगी, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इंटू y। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये सिंपली इसको ये देखें, अगर मैं इसी टर्म को इसको कुछ बच्चे शायद इसको ना समझें, तो अंडर रूट 2 अगर आपके पास इस तरह लिखा हो ना, तो हम बेसिकली इसको फिर करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं अंडर रूट 2 के साथ। ठीक है, अब ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बच्चा, या आप इसको कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4/√2। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आएगा, 4/√2 डिवाइडेड बाई 2/√2। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2/√2। ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/√2। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज अप्लाई हुई है। ठीक है, जब आप उसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपल जो
वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी। ठीक है, अब देखें ये आपके पास टोटल डिफरेंशियल का जो प्रोडक्ट रूल है वो आ गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब सिंपल इसको आपने क्या पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स 1 + x² 1/2 आपका ये जो फर्स्ट फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये 1/2 नीचे आ गया अगर जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप x का डेरिवेटिव लेते हैं तो x² तो 2x2 -1 आता है ना, तो ये 1/2 है। तो 1/2 -1 जब करेंगे ना तो ये माइनस टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास -1/2 आएगा, तो इसलिए ये टर्म आपके पास नीचे आ गई है डेरिवेटिव लेते हुए। तो उसका फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन आपके पास ये है y है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, x⁻1 + x² इंटू 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2। ठीक है, now take the integration on both side। इंटीग्रेशन हम लेंगे, तो इंटीग्रेशन से कैसे अब ये सॉल्व होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये यहाँ पे फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 प्लस, या आप कह सकते हैं x⁻√1 + x²। तो अब यहाँ पे ये देखें कि dx, ठीक है, x dx, अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट से आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम इस पे लगाएं, अप्लाई करें, तो लेट u इज इक्वल टू (1 + x²). ठीक है, तो du बाय, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो क्या होगा इसका, ये मैंने लेट किया है, अब लेट का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, du बाय dx क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 + 2x। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें du इज इक्वल टू 2x dx। अब यहाँ पे देखें इस पॉइंट के ऊपर, जब मैंने इसका डेरिवेटिव जब मैं इसका ले रहा हूं, तो इसमें एक तो मेरे पास x dx है, तो यहाँ भी मेरे पास x dx है। तो x dx अगर मैं निकालूं, ये किसके इक्वल है, x dx इज इक्वल टू du बाय 2। ठीक है, यानी x और dx की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ du बाय 2, और 1 + x² की जगह मैं पुट कर सकता हूँ u। तो अब देखें ये टर्म क्या बनेगी मेरे पास। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√u इंटू du बाय 2। समझ आई, ये देखें x dx की जगह du बाय 2 पुट कर दिया, जो कि ये है, मैंने इससे निकाला x dx इज इक्वल टू d, इस 2 को इस तरफ ले आया था ना, du बाय 2, तो du बाय 2 x dx की जगह पे आ गया। अब 1 + x² की जगह पे u आ गया, और ये 1/2 है तो अंडर रूट है उसकी जगह पे। ठीक है, तो अब ये सिंपल हो गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपल मेथड से 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से खत्म हो जाएगा। जब यहां से खत्म हुआ तो अब देखें कि u को मैं लिख सकता हूं
u की पावर -1/2, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर -1/2, तो -1/2 +1, 1/2, u की पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1। अब यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, u की पावर 1/2 और ये 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ये देखें, u की पावर 1/2 इंटू ये 1/2, अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं तो आपके पास 2/2 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल आ जाएगा। तो इट मीन आपके पास क्या बचा, u अंडर रूट। ठीक है, u 1/2 का क्या मतलब है, अंडर रूट u। तो अब अंडर रूट u में सिंपली हमने अब फाइनल u की वैल्यू पुट कर दें, 1 + x²। तो जब मैं इसमें पुट कर दूंगा 1 + x², तो आपके पास क्या बचेगा, 1 + x²। सो इसको अगर मैं ये देखूं, ये देखें, जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया इस पूरे टर्म का, तो मेरे पास क्या आया, 1 + x² अंडर रूट। ठीक है, ये अगर 1/2 ना भी यहाँ पे लिखा हो, बट इसने 1/2 अलग से लिखा हुआ है, तो इसलिए ये अंडर रूट 2 नहीं लिखा हुआ है इसने। ठीक है, बट फॉर्म यही है, अंडर रूट 1 + x²। सो प्लस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व किया, c एक साथ आ गया। अब फर्दर आप इस y को यहाँ से अलग कर लें, ये पूरी टर्म को इस तरफ लें, तो जब ये पूरी टर्म इस तरफ आएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पे, और c के साथ ये मल्टीप्लाई होके -1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, एट ओरिजिन हमने उसका जो इंटीग्रेटिंग फाइंड करनी थी कर, तो यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी x और y आपने 0 पुट करने हैं। So to find the particular curve of this family that passes through the origin, substitute x, y is equal to 0, 0 and evaluate the constant c. So by putting the value of x, y, we can calculate the value of c, which is -1. So put again this into on minus c, you will get the general solution, which is y is equal to 1 - 1 over 1 + x²। अब एंड पे आके इसने ये अंडर रूट लगाया। ठीक है, शुरू में वैसे ही ये चलाता रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, y is equal to 1 - 1 over 1 + x²। तो ये आपके पास आई, विच इज डिस्कस्ड इन y is equal to 1, आपके पास ये जो कि ओरिजिन से पास कर रही है इसकी लाइन। ठीक हो गया। अब देखें, अगर मैं इसमें ये पुट करूं 0 1 2 3 और -0 -1 -2 3, तो आपके पास एग्जैक्टली ये चीज आएगी। ठीक है, y आपके पास जब 0 में x रखता हूं तो y क्या आ रहा है आपके पास, 1। इस पॉइंट के ऊपर देखें, x और y 0 हैं, और ये आपके पास यूं कर चल रही है। आगे दिन भी लिखना है, दिन भी लिखना है कि सर्कल। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये भी सर जरा सी ट्रिकी एग्जांपल है। 9:30 से 11 नहीं है। Example 6 is an object moves along the x-axis in such a way that its position at time t greater than 0 is governed by the linear differential equation। यानी कि
An object moves along the x axis in such a way that its position at time x, यानी कि जब t ग्रेटर देन जीरो है, मीन यहाँ पे जीरो है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है, ये टाइम एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और यहाँ से जब ये मूव करता है, अब यहाँ पे कोई एक फंक्शन बना रहा होगा, तो वो कह रहा है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसकी जो पोजीशन है x वो डिपेंड कर रही है t ग्रेटर देन जीरो पे, जब ये पॉजिटिव इसमें आता है क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसकी कोई भी पोजीशन होगी है, अब इस टाइम पे ये भी पॉजिटिव टाइम है, इस टाइम पे ये पोजीशन होगी, इस टाइम के ऊपर उसकी ये पोजीशन होगी, इस टाइम के ऊपर उसकी ये पोजीशन होगी, ठीक है। टू गवर्न बाय द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dx बाई dt प्लस, अब ये x यहाँ पे वेरिएबल है, वो x यहाँ आना चाहिए, t वेरिएबल यहाँ पे है, वो फंक्शन हम लेंगे, ठीक है। ये p ऑफ x होगा और ये आपके पास q ऑफ x होगा। So if the object was at position x is equal to 2 at time t is equal to 1, ठीक है, where will it be at time t is equal to 3, यानी कि x of 2, यहाँ पे अब देखें यहाँ किस तरह आपको दिया हुआ है, एक्स वाई और एक्स की फॉर्म में तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें नजर आती है ना, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी जब x t1 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, हमने ये पुट करनी है, जब हम ये निकाल लेंगे देन उससे पूछा है वेयर विल इट बी एट टाइम t इज इक्वल टू 3, कि जब टाइम t3 होगा तब ये आपका x कहाँ पे होगा, ठीक हो गया। सो फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, रीराइट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप, दिस इज p ऑफ x, टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल राइट एज e टू रेज पावर इंटीग्रल p dt, ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में ये, तो हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, माइनस टी माइनस वन डी टी, इसको सॉल्व किया तो ये तो नेचुरल लॉग आ जाएगा, 1/t है, 1/t है, ठीक है, -1 है ना, तो ये नेचुरल लॉग आ जाएगा। और ये सिंपल x है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये सिंपल वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब e टू रेज पावर आपके पास ये देखें, ये दो चीजें आई हैं, e टू रेज पावर 1/2t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t, तो जब आप इसमें पुट करेंगे इसके अंदर टी स्क्वायर बाय 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू रेज पावर टी स्क्वायर बाय 2 इंटू, अब ये माइनस में है ना, माइनस प्लस, उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन की सूरत में हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को जब हमने इसको मल्टीप्ली इसको कर दिया तो ई टू रेज पर 2 ये आ जाएगा, और ई टू रेज पर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस टी की पावर में चला जाएगा, ये जो माइनस है नेचुरल लॉग के साथ पावर में आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल इस नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप के अंदर वो किया हुआ है।
So when we write this minus into product form, you can cancel this natural log with this exponential. So we will get e t to raise power minus 1, which is 1 over t, e to raise power t square by 2. So you can write this as this is your integrating factor. So for the next step, we multiply this integrating factor with equation 1, which is equation 1 is our given question. So multiply, when we multiply integrating factor with our equation number 1, so we will get t minus 1 e to raise by t square by 2 as it is dx by dt plus 1 minus t minus square as it is e to raise by t2 by 2x, and this t minus 1 will cancel to this t. ठीक है, तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास t माइनस टू बच जाएगा पीछे, क्योंकि t माइनस वन इंटू टी माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है टी स्क्वेयर, सो मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ये चाबियां पड़ी, so multiply this, when we multiply by this t minus 1 we will get only t square, से हमारे पास t आ जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर t स्क्वेयर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है t की पावर माइनस 1 से, इसका मतलब है t स्क्वेयर डिवाइडेड बाई t है। ठीक है, तो ये t एक स्क्वेयर के साथ कट जाएगा, ऊपर t रह जाएगा, और ये वाला जो फैक्टर है e टू रेज बाय t स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 वो एज इट इज आपके पास आ जाएगा। As usual, the left hand side automatically collapse, mean this is your total differential, which can be write into the product rule dy by dt, first function and second function which is x. So first function as it is t inverse e to raise by t square divided by 2 into second function which is x is equal to right hand side can be right as it is, there will be no change in the right hand side. So after this step we will integrate on the both side of the equation. So when we integrate, तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टी ई टू रेज बाय टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आ जाएगा, अगेन इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें आप। लेट, इसको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ताकि स्पेस मेरे पास है। लेट टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यू। At the end, I will take your attendance at the end of this lecture. So kindly make sure your presence at the end of this lecture. So take the derivative of this du by dt is equal to 2t will be 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, तो आपके पास du इज इक्वल टू t dt। ठीक है, ये dt मैं सिर्फ ले आया हूं, तो du किसके इक्वल है t dt। तो यहां पे देखें मेरे पास
टी डी टी ऑलरेडी मौजूद है, टी और डी टी, टी डी टी की जगह मैं डी यू पुट कर सकता हूँ ना, और यू की जगह मैं इस टी स्क्वेयर बाय टू की जगह मैं यू पुट कर सकता हूँ। तो अब देखें हमारे पास क्या रह जाएगा। सो आवर न्यू इंटीग्रल विल बी लाइक दिस, टी डी टी की जगह आपके पास डी यू आ गया, ठीक है, टी डी टी, ये टी और ये डी टी, आपके पास डी यू आ गया, और ई टू रेज पार्ट टी स्क्वेयर बाय उसमें क्या आ गया, यू, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है ई टू रेज बार यू का, एज इट इज सर ई यू का डेरिवेटिव ई यू ही होता है। यू होगा। अब और डेरिवेटिव ऑफ यू का अगेन लेंगे, वो वन होगा। तो अब देखें इसका ये आ गया प्लस सी, ठीक है। तो अब u की सिंपल वैल्यू पुट कर दे इसमें आखिर में जाके सिंप्लीफाई, तो u की पावर क्या है, टी स्क्वेयर बाय टू प्लस सी। तो आपके पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। अब यहाँ से आप सिंपल x को अलग कर लें, x को जब हम अलग करेंगे तो ये पूरी टर्म इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये इजी है, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस ये t माइनस वन ई टू रेज पावर टी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो c, ये टर्म ऊपर आके माइनस इसने देखे लिखा हुआ है, तो इसलिए ये c के साथ माइनस है। तो वन t से यहाँ कॉमन लिया, दोनों में t कॉमन था ना, ये इसके साथ कैंसिल हो गया था, तो वन ओवर t बचा था पीछे, ठीक है। So this, that's why this the equation form is x is equal to, but we have one sum जी ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? So as this is the initial value problem, when x is equal to 2, t is equal to 1, put the values as t is equal to 1 and x is equal to 2, we will get c is equal to e to raise power 1 by 2, or c e to raise power under root e to raise under root e. So thus the position of x when t is equal to 1 is x, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें c की वैल्यू पुट कर दें, c की हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, तो ये आपके पास आ गया। अब आप देखें कि उसने कहा है एंड देयर फॉर द पोजिशन एट टाइम t। अब ये देखें 2 और 1 जो गिवन था ये फॉर c निकालने के लिए कांस्टेंट। अब जब c आपके पास आ गया, अब इजीली हम यहाँ पे देखें t की वैल्यू अगर 3 है तो मैं उसकी जगह ओनली 3 पुट कर दूं, x एट व्हेन t इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास आंसर ये होगा, ठीक है। यहाँ सिंपल 3 की वैल्यू पुट कर दें और ये 3 की वैल्यू पुट कर दें। अब अगर मैं ये 3 की वैल्यू पुट कर दूं, इसको आप एक्सपोनेंशियल -4 करें, कैलकुलेटर से आंसर निकालें, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3.055 व्हेन x at t is equal to 3 at 3.055, ठीक है।
तो ये मेरा आंसर है। अच्छा, इसमें आप देखें कि जिस तरह ये क्वेश्चन गिवन है, इसी तरह आप यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो यहाँ पे सॉल्व किया है, c इज इक्वल टू -1 आ गया, तो आपके पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गई ना, आपने उसकी वैल्यू पुट की और आपके पास ये आ गया। अब फर्दर यहाँ से आपसे वही जिस तरह से कहा है कि एट t इज इक्वल टू 3 आप y की वैल्यू निकालें, तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कोई देकर आपको पूछ सकता हूँ कि अब y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी अब x की वैल्यू यहाँ आपको गिवन हो 6, तो y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, सिंपल इसमें 6 की स्क्वायर पुट कर दें तो आपके पास कोई y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस तरह भी दिया जा सकता है। अच्छा, मुझे CR आपका किधर है, मौजूद है? सर उसका थोड़ा सा नेट इशू बना हुआ है। नेट इशू बना हुआ है। मैंने आपकी क्लास का एक तो क्विज लेना है मुझे, एक तो वो टाइम आप लोगों ने बताना है इसी वीक, कोई अगर आपकी क्लास फ्री है, नहीं फ्री है तो क्लास के बाद का कोई टाइम, ठीक है, 2 से 3 बजे तक जो भी आपके पास टाइम है। एक आपका क्विज नहीं हुआ ना अभी तक? सर आपने बोला था आज नहीं लेंगे। मैंने तो नहीं बोला था, या मुझे याद नहीं है अगर सर, मैंने बोला सीआर ने कहा है कि आज लेना है। आज चले, शायद उसको मैंने कहा हो, लेकिन आज ये तो भी लेक्चर चलेगा ना, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम दें। थर्सडे को ले लें सर। थर्सडे को? बाकी क्लास क्या कहती है? ये सर बस ले लें कल परसों ही, फिर आगे तो पेपर आ रहे हैं। ठीक है, मैं थर्सडे को एक क्विज ले लूंगा आप लोगों का। दूसरा असाइनमेंट्स आप लोग कर रही हैं? यस सर। यस सर। अपलोड भी की है? ये सर आज सबमिट करेंगे। कर दी है। कितनी असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को दी है? सर एक। एक? यस सर, एक नहीं, एक है, पहले भी दी दूसरी थी और एक क्विज भी एक हुआ है आप लोगों का? वो एज असाइनमेंट हो गया सर कंसिडर हुई। आपका। असाइनमेंट अभी एक ही हुई है कमरान भाई। हाँ, असाइनमेंट तो ये अभी पहली मिली थी ना, उससे हाँ, पहले सर ड्यू ने उसकी क्विज के तौर पे कल वो कल उसकी लास्ट डेट है असाइनमेंट की। यस सर। अच्छा, और उससे पहले एक जो आप लोगों ने सबमिट किया है वो क्या था? क्विज था? क्विज सर। जी सर। यस ठीक है, सर क्विज। तो क्विज 2 हम लेंगे, ठीक है, और असाइनमेंट 2 भी अभी मैं आपको देता हूँ, बल्कि मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स दी हैं। नहीं सर, एक ही है। एक ही? ठीक है, चले। मुझे वो एक परसों इंशाल्लाह, फिर मैं आज क्या दिन है, मंगल, बुध, जुमरात को। थर्सडे को जुमरात को किस टाइम पे? तब 12 बजे के बाद ले लें, क्योंकि उस टाइम ठीक हमारी सुबह 2 क्लासें होती हैं ठीक है लैब्स की। ठीक है ठीक है, मैं 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने गूगल क्लास रूम से ही वो क्विज उठाना है और वहां पे ही आप लोगों ने अपलोड करना है, ठीक है। ओके सर। गूगल क्लास रूम ओके पे सर। सब बच्चे हैं ना, तो जो आपके रिपीटर्स हैं आप लोगों ने उनसे को भी वो उसका जो है ना बता देना इसका, ठीक है। राइट सर। अच्छा, अब एक 2 क्वेश्चन इसमें हम भी देख लेते हैं। ये तो सिंपल है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो मुश्किल जहाँ पे आती है वो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के अंदर आती है, ठीक है। बाकी देखें इसमें जितने भी आपको मेथड्स हैं सिंपल हैं, कि अगर वो एग्जैक्ट है तो उस पर ये अप्लाई कर दें, अगर होमोजीनियस है ये रूल अप्लाई करें, अगर आपके पास सेपरेबल है उसका इंटीग्रेशन लें, और अगर आज का कौन सा था हमारा, लीनियर है फर्स्ट ऑर्डर, तो आप उसको इस तरह सॉल्व करें। तो जो कम्प्लेक्सिटी हमारी इसमें आती है इसकी सॉल्यूशन में, वो सिंपली हमारी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन या टेक्निक्स की आती है।
सर जी अटेंडेंस ले लें। बेटा जी एंड पे अटेंडेंस लेंगे, पहले ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, फिर बच्चे भाग जाते हैं। सर वो सर मेरे लास्ट मोबाइल क्वेश्चन। की आपको अटेंडेंस सर जी वो मोबाइल की बैटरी डालता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बात और मसला ये कौन है? जिशान मुगल, ये रिपीटर है? नहीं सर। नहीं नहीं सर, हमारी क्लास क्या है ना। चलें, आपका मुझे बता देना, जब मैं अटेंडेंस लूंगा मुझे कोई बता दे कि ये इस बच्चे का ये इशू था। ओके सर, मैं बता दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन देख लें जिसमें है dy बाय dx। अच्छा, इसको आप y सिंपली y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको y डैश ही कर दूं, ठीक हो गया। प्लस y डिवाइडेड बाय x नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये हमने देखना है कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी कामरान, स्टैंडर्ड फॉर्म में यस सर। है, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव भी आपको मिल रहा है और आपको y के साथ एक p ऑफ x भी मिल रहा है और q ऑफ x भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से कहेंगे हेयर p ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो ये y को आपने p ऑफ x में नहीं लेना, सिर्फ x की टर्म्स को, ठीक है। तो हमने यही लिखा था ना, y डैश प्लस p ऑफ x फंक्शन ऑफ x के साथ जो है इनटू y। तो ये p ऑफ x y के साथ जो टर्म्स होंगी, फंक्शन होगा, वो p ऑफ x होगा, इज इक्वल टू q ऑफ x। तो q ऑफ x से मेरा x की टर्म में यहाँ पे होगा। सो हेयर p of x is equal to 1 over x into natural log of x. So take integrating factor. Taking integrating factor, we will get if is equal to e to raise power integral p of x dx, ठीक है। इसको आप वैल्यू पुट कर दें p of x की। p of x की वैल्यू क्या है? 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अब यहां पर देखें, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1/x। 1/x। तो अगर मैं नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव ऊपर बना लूं, ठीक है, तो इसका मैं इंटीग्रेशन ले सकता हूं ना। तो वो हम कैसे बनाएंगे? ये 1 ओवर x मौजूद है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। तो देखें कैसे करेंगे। e टू रेज पावर 1 ओवर x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x dx लिख सकता हूँ ना इसको, यानी ये x ऊपर की तरफ ले जाऊं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, यस सर। ठीक है ना। तो अब देखें, सिंपल है इंटीग्रेशन, यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू रेज पावर नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ठीक है। यानी जिस तरह हम 1 ओवर x का लेते हैं ना इंटीग्रेशन, तो वो सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ x आता है। अब ये x की जगह नेचुरल लॉग है, तो मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ x डबल उसका आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इस नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आएगा हमारा? नेचुरल लॉग ऑफ x के, ठीक है। नो थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारे पास? मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ इक्वेशन 1।
सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास ये। तो इक्वेशन 1 के साथ जब मैं इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई डैश प्लस इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करूं तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा नीचे। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/x y, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, यहाँ भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मौजूद है, ये भी जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3x² बचेगा हमारे पास। तो इज इक्वल टू 3x², सिंपल। अब यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कैन वी राइट दिस एज dy/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा नेचुरल लॉग ऑफ x है, सेकंड फंक्शन एज इट इज मींस सेकंड फंक्शन हमारा y है, इज इक्वल टू 3x²। सही है। Now take the integration both side, integrating both side। तो इंटीग्रेटिंग जब हम बोथ साइड करेंगे ये डेरिवेटिव इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इधर क्या बचेगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 3 कॉमन आ जाएगा और x³ डिवाइडेड बाई 3, दिस 3 विल कैंसिल आउट दिस 3, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस सी एक कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x³ प्लस सी, यहाँ से आप y को अलग रखें, y जब आपके पास अलग हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, x³ प्लस सी डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। तो दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होता, फॉर एग्जांपल y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे 2 पुट करते, यहाँ पे 1 पुट करते, तो c की वैल्यू आप निकाल सकते थे, ठीक है। c की वैल्यू अगेन इसी इक्वेशन में पुट करते तो हम जनरल सॉल्यूशन जो कि y का, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x³ प्लस सी, लेट से कि 2 आ रहा था और नेचुरल लॉग ऑफ x आपके पास आंसर होता, ठीक है। क्वेश्चन है x dy डिवाइडेड बाय dx प्लस 1 प्लस x कोटेंजेंट ऑफ x y is equal to x। So first step क्या है हमारे पास, into standard form, convert this equation into standard form। So we must separate this differential from any function। तो हम इस डेरिवेटिव को बाकी जो फंक्शंस हैं उससे क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। सो जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इसको भी x से डिवाइड करेंगे और इसको भी x से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा y डैश प्लस, इसको डिवाइड किया 1/x
ठीक है, 1/x प्लस इसके साथ भी डिवाइड होगा तो x x से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस कोट टेंजेंट ऑफ x y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई x1। ठीक है, so from this is our equation 1. So for the next step, which is step 2, here p of x is equal to 1/x plus cotangent of x. So taking integrating factor, which is equal to e to raise power p of x dx, and when we put the value of p of x into integrating factor, which is 1/x plus cotangent of x dx. So take the integration of p of x, which is integrating factor, is equal to, ये आपके पास नेचुरल लॉग आ जाएगा, e टू रेज पावर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कोटेंजेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log of sin x. log of sin x, बिकॉज हमारे पास जो कोटेंजेंट x है वो इक्वल होता है sin x और cos x। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव ऊपर है तो इट मीन कि ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, सर माइनस ln ऑफ x होगा क्योंकि cos x डिवाइडेड बाय sin x cot x होता है। क्या कह रहे हैं, सर cos x डिवाइडेड बाय sin x होता है cot x, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस ln ऑफ sin x होगी। जी जी, माइनस साइन एक्स अवर कॉट एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अब ये देखें, दोनों में नेचुरल लॉग आ रहा है ना, इसमें भी नेचुरल लॉग आ रहा है, इसमें भी नेचुरल लॉग आ रहा है, तो ये नेचुरल लॉग अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखूं, ये इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x sin x बचेगा। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो x sin x को नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये। सो इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x sin x इंटू वाई डैश, ये एज इट इज आएगा प्लस, यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x sin x, पहला इसमें इसकी जगह sin x आ जाएगा, और दूसरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x इंटू 1/x प्लस कोटेंजेंट ऑफ x, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
एक्स साइन एक्स 1 है ना, ये इक्वेशन है। तो 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास ये है एक्स, ये गलत हो गया, एक्स साइन एक्स। देखें जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, इसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं जरा इरेज करता हूँ। ये आपके पास साइन एक्स है और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, 1/x प्लस कॉट ऑफ एक्स के साथ, एक्स साइन एक्स है। अब इसको अगर मैं लिखूं एक्स साइन एक्स वाई डैश प्लस ये एक्स को अंदर मैं ले जाऊं इस एक्स को, तो पीछे मेरे पास बचेगा साइन एक्स। ये एक्स अंदर गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 1 आ जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर देखें फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास वाई। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको मैं टोटल इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज विच इज एक्स साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन एज इट इज विच इज वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक हो गया। नाउ टेक इंटीग्रेटिंग both side with respect to x. So when we integrate both side with respect to x, we will get, ये इंटीग्रेशन इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और इसकी हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। सो x साइन एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स। अब यहाँ पे लगेगा हमारा कौन सा रूल, सर बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स लगेगा, तो बाय पार्ट्स का क्या फार्मूला है, एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि साइन एक्स है उसका माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, cos x, cos x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अगेन जो कि माइनस cos x है dx है, और प्लस आपके पास क्या है c है। तो इसको जब आप फर्दर इसकी एक और बार इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास x साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास माइनस x cos x माइनस और माइनस प्लस cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन x। ठीक है, प्लस सी, ये हो गया। देन यहाँ से आप y को अलग से अलग कर लें,
y को जब आप अलग करेंगे तो क्या होगा आपके पास, x साइन x, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय ये साइन x इस तरफ आ जाएगा, साइन x प्लस ये प्लस है, साइन x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x यहाँ पे रह जाएगा, प्लस c के साथ फुल जो है x साइन x आपके पास आ जाएगा। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंपल कर लें तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस ओवर क्या होता है आपके पास कोटेंजेंट x प्लस 1/x प्लस c बाय x साइन x। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये दोनों आपके पास इसके आंसर हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। सर पेपर का थोड़ा डिस्कस कर। पेपर में यही जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी में से ही आएगा। ठीक है, सर स्लाइड्स में से आएगा। जो जो पढ़ाया आपको। ओके सर, कितने क्वेश्चन देंगे सर? क्वेश्चन होंगे 5-6। 3 क्वेश्चन होंगे, उसके पार्ट्स होंगे 7, तो 2-2 पार्ट्स होंगे 3 क्वेश्चंस के, 6 तक चले जाएंगे। मे भी हो सकता है इसमें शायद एमसीक्यूज बेस हो, लेकिन शायद वो ना हो। ओके सर। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये प्रैक्टिस के लिए देख लें क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन 1 है dy/dx। प्रैक्टिस प्लस ये असाइनमेंट 2 भी आप कर लें इसको। प्रैक्टिस करें ना, साथ ही वो असाइनमेंट ही आपकी बन जाएगी। तो ओके सर। प्रैक्टिस मीन जब आप अपना मिड की तैयारी करेंगे तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे पेजेस पे लिख लें, वो आपकी असाइनमेंट उसकी पिक्चर्स अपलोड कर दें। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं सिंपल इसको y डैश लिख रहा हूँ, प्लस 2x प्लस 1 divided by x into y is equal to e to raise power minus 2x। अब यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी जो है ना इसी लीनियर फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, आपके जो दोनों डेरिवेटिव है ये सेपरेट है बाकी फंक्शंस के साथ, तो इनको सिंपल आपने अरेंज नहीं करना, डायरेक्टली इसमें सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, y डैश प्लस 3/xy is equal to 6x।
Question number 4. Cos cube x dy by dx plus y cos of x is equal to sin x. ठीक है? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 एक दफा दोबारा शो कर दे। ये मैं अपलोड कर दूंगा आपको। ये ले क्वेश्चन 1, इसको मैं सेव कर लेता हूँ ना, ये एज इट इज अपलोड हो जाएगी LMS पे। ठीक है। क्वेश्चन 1 इसको थोड़ा सा मैं ये ले, एक और क्वेश्चन कर लें। ठीक है। x प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू ई टू रेज पर x प्लस 1 n प्लस 1। ये 5 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी, या मैं ये LMS पे भी लोड कर दूंगा, अभी यही फाइल होगी तो इसमें से आप देख लें। और मंडे थर्सडे को 12, मुझे एग्जैक्ट टाइम क्या है? 12 है। क्विज कब मैं अपलोड करूं? 12 बजे ना, फारिग हो जाते हैं तो पूरे 12 बजे फिर मैं अपलोड कर लूंगा। सर 12:30 ओके बजे सर। 12:30 बजे कर दूंगा। ठीक है, 12:30 बजे कर दूं फिर? जी सर, जी 12:30 सर, सही है। 12:30। ठीक है। आज 4 और 7 कितना होते हैं? 11। 11। तो ये क्लास 13 क्यों है आज? पिछली क्लास कब हुई थी? 6 तारीख को। ठीक है, 6 को हुई थी ना? आज 13 ना, 6। ठीक है, 6 4 13 56। हमारी एक क्लास मिस हुई है। हमारी एक क्लास मिस हुई थी। यस सर। मुझे छुट्टी थी जिस दिन। अच्छा 36 और नंबर 42। 23 मार्च को सर छुट्टी थी हमारी क्लास। सर फिर क्विज 12:30 पे अपलोड करेंगे आप? जी जी।
3 सर 12:30 पे अपलोड करेंगे क्विज। जी जी 12:30 बासी पन्नी है। यस सर। हमजा नहीं वो बासी। रूम नंबर प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, रूम नंबर क्या है आपका? 54025 है आखिर में 25 जी। रूम नंबर 7 में दो। अच्छा अब है तौसीफ अहमद 43। अदीना फातिमा प्रेजेंट सर। दियाना सर डियाना का नेट इशू है। और हमजा खालिद मलिक। अबादुर रहमान। फरहाद इजाज। तकवीम। प्रेजेंट सर। और फैजान मजहर। जुबैर हयात। अच्छा एक बचा है मोहम्मद समीउल्लाह। यस सर, हमारी क्लास का ये लड़का। नहीं है। ओके क्लास। दो बच्चे एब्सेंट हैं हमजा खालिद मलिक और समीउल्लाह। सर मेरी लगा दी है ना? मैं कह रहा हूँ दो बच्चे एब्सेंट हैं मोहम्मद समीउल्लाह और हमजा खालिद मलिक। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो क्या कहते हैं उसे, हमारा पेपर के लिए अलग डेट शीट, हमारे पेपर के लिए अलग डेट शीट आएगी कोई? मुझे नहीं आइडिया इसका। क्योंकि उस दिन हमारा पेपर है। और सर क्विज ये एक पहले भी हो चुका है सर, वो अगर देना हो तो वो फिर कब दे सकते हैं? वो आप गूगल क्लास पे अपलोड करें। वही क्विज अपलोड कर दें सर? तो वही करें ना। चलें सही है, थैंक यू सो मच सर। ओके क्लास यू कैन लीव। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह ओके हाफिज़ सर। हाफिज।